Hello children, I hope you all are good. So children, let's start today's class. So children, I welcome you all to class 1 computer. In our previous video, we were doing chapter 4, that is places where computers are used. So children, we had studied about different places where computers are used, and some places are still left that we will be studying today. Before that, let us revise the places where which we had about which we had studied yesterday. So children, our chapter is 4, places where computers are used. So children, yesterday we learned that computers have become one of the important thing or item in our life. It has become part of our life. Means हमारी लाइफ में जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिना शायद हमारा लाइफ इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इज़ नॉट परफेक्ट और नॉट ईजी, तो कुछ ऐसी चीज़ कंप्यूटर है जो विच मेक्स आवर लाइफ ईजियर, विच सेव्स आवर टाइम एंड मेक्स आवर लाइफ फास्ट. तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट thing which we have nowadays, and we are using it in each and every field of life. So it has become part of our life. So we studied that we use computer at different places. So till now children, we have studied at school. We use computers at school. First was at school, then we studied about at home. Then we studied at office. Then we studied at hospital. At hospital. At hospital. And today we are going to revise these places, and then we will read about some more places where we have computers. And also we studied about at shops. At shop. So these were the places about where we studied about the computer. Ki why computer are used at places, we will revise once again before moving further in the chapter. So children, here first place at school. As I told yesterday children, school is one of the place where we do lot of things using a computer, starting from the studies part. Children, using the computer at school, we do learning and as well as teaching process. Teacher uses computer for teaching and student uses the computer for learning. And other than that children, we keep the record of employees who are working in the school, and we also keep the record of students who are studying in the school. So for that also we need computer. We prepare question papers, we prepare results, we keep the record of fees, we keep the record of different books in the library. So there are different there are many tasks which we do using the computer at school. So we have computers in the library, we have computers in principal's room, we have computers in office, we have computers in labs. So at all these places we do different types of work using the computer. And in school it is one of the important substance or the one of the important कह सकते हैं object which we need to do various work. Other than this children, next is at home. मैंने कल आपको घर के बारे में भी बताया था. Nowadays even at home, if you talk about you people or your father, of course they use computer. Other than your father and you, your mother is also using the computer. आपकी मम्मी भी बहुत सारे काम करती है कंप्यूटर से आजकल. मम्मी लोग भी स्मार्ट हो गए हैं और वो भी अपनी लाइफ में कंप्यूटर को उन्होंने भी अपनी लाइफ में कंप्यूटर को एक प्लेस दिया हुआ है. तो लेट अस सी व्हाट आर द टास्क विच वी डू यूजिंग द कंप्यूटर्स एट होम. So at home children, we do homeworks, we do internet surfing, we send and receive mails, we use it for studying purpose, we play games, we listen to the music, we watch movies and cartoons. So these are the tasks
which we do using the computer. Other than these children, as I told you, your mothers also use the computer. Children, as I told you, your mothers have become smart means children आपके your mothers are already smart, but nowadays the mothers who are not working also, the mothers who are not working, they are also using the computers. क्योंकि वो सारी mothers जो काम नहीं करती, ऑफिस नहीं जाती है या कोई ऐसा काम नहीं करती, वो भी कंप्यूटर को यूज़ करके बहुत सारे काम करती है. जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन आजकल बिजनेस भी करते हैं घर बैठे लोग. तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मदर्स भी करती हैं, वो भी मेल रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं. आप लोग अपने स्कूल से रिलेटेड मेल सेंड और रिसीव करते. सो एट होम ऑल्सो वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स using the computer. उससे भी important, nowadays we are doing our online classes. Most of your fathers, most of the children's father may be doing online office work also, means they may be working from home. तो जो लोग इस ऑफिस किसी पर्टिकुलर ऑफिस में काम करते होंगे, वो लोग घर से काम करते होंगे, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग द कंप्यूटर्स एट होम. तो नाउअडेज कंप्यूटर्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम सुबह उठ करके अगर हमारा मोबाइल सही से काम नहीं करेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि पूरा दिन कैसे चलेगा. तो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट कंप्यूटर्स हैव बिकम part of our life. It has become one of the essential item which we have in our houses. हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मशीन्स हैं या आइटम्स हैं जिसको हम अपने किसी न किसी काम को आसान करने के लिए या अपनी लाइफ को हमारी लाइफ ईजी हो जाए या फिर हमारी लाइफ फास्ट हो जाए, उसके लिए करते हैं और हमारा काम ईजिली हो जाएगा. टू डू आवर वर्क विथ ईज हम यूज़ करते हैं. तो उनमें से एक कंप्यूटर है जो कि उन सबसे भी इम्पोर्टेंट. एक दिन अगर हमारा वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है तो चलेगा, एक दिन फ्रिज खराब हो जाता है चलेगा, वी विल मैनेज विथ नॉर्मल वाटर, प्लेन वाटर. बट इफ वन डे योर मोबाइल इज नॉट वर्किंग, इट इज रियली वेरी टफ टाइम फॉर यू. इट विल बी रियली वेरी टफ टाइम फॉर यू. तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें, जिससे आपका कंप्यूटर या मोबाइल, तो मोबाइल इज ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटर, आपका कैसे सही हो और कितनी जल्दी से जल्दी आप उसको सही करते हो. सो चिल्ड्रन, इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन सी ऑल्सो हियर देयर आर ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर वी गो एंड वी नीड टू गो, और ऑल दीज प्लेसेस हैव कंप्यूटर्स. और जो भी काम वहाँ पे होते हैं, कोई ना कोई या बहुत सारे काम हम कंप्यूटर से करते हैं. उसके बाद चिल्ड्रन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट ऑफिस. कल हमने ऑफिस के बारे में डिस्कस किया था. अब ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मेल रिसीव किया जाता है या फिर सेंड किया जाता है, और जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको प्रिंट करते हैं. टाइप करने के लिए हमें कंप्यूटर्स चाहिए. तो और जो एम्प्लॉयज़ है ऑफिस में, ऑल द वर्कर्स ऑफ द ऑफिस, their record is also maintained using the computer. So these are the work which we do using the computer in the offices. Then children, at hospital, as I told you yesterday children, in hospitals doctors also use computers for diagnosing the diseases. उसके अलावा children, when you go to the hospital, they keep your record. The patients who are coming to visit the hospital or to have prescription with the doctor, को से अपॉइंटमेंट लेते हैं. सो उन सभी का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. फॉर दैट ऑल्सो वी नीड अ कंप्यूटर. देन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन्स, after doctor's prescription children, you take medicines, and those medicines when we buy from the shop, medical shop, there also we get a receipt. वहाँ पे भी हमें प्रिंटेड रिसीट मिलती है. तो जो मेडिकल स्टोर में बंदा है उसमें भी ही इज़ यूजिंग द कंप्यूटर फॉर मेकिंग बिल. उसके बाद चिल्ड्रन हम कंप्यूटर हॉस्पिटल में और भी कोई भी रिकॉर्ड या डिसीजेस फाइंड आउट करना हो या फिर और भी बहुत सारे काम हैं जो हम कंप्यूटर, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं. इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो वी हैव एम्प्लॉयज़ फॉर कीपिंग देयर रिकॉर्ड ऑल्सो वी नीड, एंड द पेशेंट्स हु आर विजिटिंग टू द हॉस्पिटल फॉर कीपिंग देयर रिकॉर्ड्स ऑल्सो वी नीड अ कंप्यूटर. सो इन हॉस्पिटल ऑल्सो वी डू लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग द कंप्यूटर. देन नेक्स्ट चिल्ड्रन, नेक्स्ट है हमारा शॉप. अब एक छोटी सी भी शॉप की अगर आजकल हम बात करें तो देयर ऑल्सो वी नीड अ कंप्यूटर. शॉप में हम क्या करते हैं, शॉप में वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टॉक. स्टॉक मतलब जो सामान शॉप में आता है, सेल होता है, उसे हम स्टॉक कहते हैं. जो भी आइटम्स शॉप में होती है उसे हम स्टॉक कहते हैं. तो उसका आना, उसका सेल होना और कितना बचा है, ये सारे का रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटर से रखते हैं. उसके बाद वंस अगेन यू गेट द रिसिप्ट
For that also we need a computer. Whatever you buy from the shop, for that also we get a receipt. For that also we need a computer. Nowadays we get printed receipt. तो इन सारे काम के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो इन सब जगहों पे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. एंड एट ऑल दीज प्लेसेस कंप्यूटर हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मशीन या ऑब्जेक्ट, या it has become something which without which the life would be little bit difficult. अब इससे आसान हो गया, आराम से हमारा काम हो जाता है. हम रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें. तो एक रिकॉर्ड हम आराम से मेंटेन कर लेते हैं. सो चिल्ड्रन, आफ्टर दैट वी हैव बैंक. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बैंक. सो वी नीड कंप्यूटर्स इन बैंक ऑल्सो. सो यू मस्ट हैव गॉन टू द बैंक और यू मस्ट हैव विजिटेड टू द बैंक. आप कभी ना कभी अपने मम्मी या पापा के साथ बैंक गए होंगे, तो आपने बैंक में देखा होगा फॉर विड्रॉइंग मनी यू हैव एटीएम. एटीएम मशीन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटर. जो एटीएम मशीन होता है जिससे आप आराम से पैसे निकाल लेते हो. बच्चों, पहले जब हम एटीएम मशीन से पहले जब हम बैंक में लाइन लगा करके पैसे निकालते थे तो बहुत परेशानी होती थी, लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, घंटों लगता था हमें निकालने में. चिल्ड्रन, इसीलिए घंटों लगने की वजह से हम बैंक जाने में घबराते थे, हमको टाइम निकालना पड़ता था बैंक जाने के लिए. लेकिन आजकल हम इन सारे कामों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं होती. हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं और हमारा काम हो जाता है. उसमें मुश्किल से हमें 10 मिनट 5 मिनट या कभी कभी तो कोई अगर भीड़ नहीं है तो हम तुरंत निकाल करके आ सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, द कंप्यूटर हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी ईजी एंड फास्ट. बहुत आसान बना दिया है कंप्यूटर में हमारी लाइफ को और फास्ट बना दिया है. तो इन द बैंक्स ऑल्सो चिल्ड्रन, मेनी पीपल कम टू द बैंक. तो फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द पीपल हु कम टू the bank for withdrawing or doing any kind of transaction with the bank, we need computer. So bank में भी the computers are used for, in bank children, computers are used for, computers are used for firstly we use the computer for depositing and withdrawing money. तो हम यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिटिंग एंड एंड विथड्रॉइंग DRAWING विथड्रॉइंग मनी MONEY मनी. ठीक है. देन सेकेंडली चिल्ड्रन, वी मेंटेन maintaining the accounts. Then thirdly children, W are withdrawing cash through 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 ATM. So children, here you can see these are the tasks which we do using the computers in bank. सबसे पहला काम होता है बच्चों डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी. डिपॉजिट यानी जमा करना. अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको जमा करने जाते, क्योंकि हम पैसे को घर में रख नहीं सकते. इट इज़ नॉट सेफ. टू मेक आवर लाइफ सेफ वी कीप द मनी इन द बैंक. हम अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं. For opening the account also we go to the bank, and then for doing any kind of transaction. Transaction का मतलब होता है लेन देन. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन. लेन देन में आगे आपको डिपॉजिट करना या विड्रॉ करना. वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक एज वेल एज वी विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. तो फॉर दीज टू टास्क वी गो टू द बैंक. एंड चिल्ड्रन, वी डोंट कीप लॉट ऑफ मनी इन आवर हाउस. हम अपने घर में बहुत सारा पैसा नहीं रखते हैं. अगर हमारे पास पैसा है हम उसे ले जा करके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं. तो डिपॉजिट करना, जमा करना, विड्रॉ करना यानी कि निकालना. अगर आपके पास आप ज़्यादातर आप लोगों में से अधिकतर लोगों के मोस्ट ऑफ यू हैव योर फादर स्टेइंग समवेयर फार फ्रॉम यू, कहीं दूर आपसे रहते हैं. तो सभी के पापा हर महीने में आपको पैसे भेजते होंगे. किसके थ्रू भेजते होंगे? आपको बैंक के थ्रू भेजते होंगे. तो वहाँ पे बच्चों आप उस पैसे को निकालने के लिए जाते हो ना अपने खर्च के लिए, या आपकी मम्मी के अकाउंट में भेजते हैं. तो आपको जब भी ज़रूरत होती है तो यू गो टू द बैंक और यू गो टू द ATM एंड विड्रॉ द मनी.
तो इसके लिए वी नीड अ कंप्यूटर। एंड द कस्टमर्स हु कम टू द बैंक फॉर डूइंग द ट्रांजेक्शन, फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर। जो कस्टमर बैंक में आते हैं अपने लिए अकाउंट खुलवाने के लिए या मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, जमा करने के लिए यानी डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए, फॉर दैट ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर। और चिल्ड्रन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं, तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद मेंटेनिंग द अकाउंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका अकाउंट है उसे मेंटेन करना, या जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपना अकाउंट खोल के रखा हुआ है उनके अकाउंट को मेंटेन करना, इसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो बैंक्स यूज कंप्यूटर फॉर दीज थिंग्स। देन विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द एटीएम, जो आप कैश एटीएम से विड्रॉ करते हो, तो एटीएम इज ऑल्सो वन ऑफ द मशीन, तो वो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। सो चिल्ड्रन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विच वी डू यूजिंग द कंप्यूटर इन बैंक। आपने देखा होगा कि बैंक में भी अलग अलग स्टाफ होते हैं, बैंक मैनेजर होता है, बैंक में क्लर्क होता है, कैशियर होता है, उसके अलावा और भी अकाउंटेंट होता है। तो ये जितने भी लोग होते हैं सबके टेबल पे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर होता है, और ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द वर्क विच दे डू इन द कंप्यूटर इन द बैंक आर डन यूजिंग द कंप्यूटर। तो इन बैंक ऑल्सो द वर्क इज नॉट possible without the computer, so there also it is one of the important thing. Then so हमने बैंक भी पढ़ लिया। Now we will read our next place, that is children at airport and railway station। आप सभी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जानते होंगे या कभी ना कभी गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया एट बैंक। सिक्स्थ प्लेस इज BANK बैंक। नाउ सेवेंथ वन इज चिल्ड्रन, सेवेंथ वन हमारा है, सेवेंथ इज airport and railway station। at airport, AIR, air, PORT, port, and railway, RAIL, rail, WAY, railway station, railway station, STATION, station। So children, as we know, at railway station we use computer for reservation। सबसे पहला काम रिजर्वेशन है, या समटाइम्स फॉर कैंसिलेशन ऑल्सो। पहले तो हम रिजर्वेशन कराते हैं। क्यों रिजर्वेशन कराते हैं? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं, या फिर हम यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हुए हैं, हमारी फैमिली कहीं और रहती है, हमारा नेटिव कहीं और है, तो वहाँ पे जाते हैं, या फिर वैसे भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हम रिजर्वेशन कराते हैं। आइदर वी गो बाई प्लेन और वी गो बाई बस और वी गो बाई ट्रेन। तो इन सभी चीज़ों से जाने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस वेर यू आर गोइंग, तो डिस्टेंस के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से कि हाउ मच वी कैन स्पेंड, और उसके बाद या फिर अपने टाइम की वजह से कि हाउ मच टाइम वी हैव, हाउ मच टाइम वी कैन गिव इन ट्रेवलिंग। तो अगर हमारे पास 5 दिन की छुट्टी, हम 2 दिन ट्रेन में बिता देंगे तो हम एंजॉय नहीं कर सकते कहीं जा करके, तो हम प्लेन से जाते हैं और हम उतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो हम प्लेन से जाते हैं, और उसके बाद फिर हम ताकि जल्दी पहुंच जाए, तो यहाँ पे अलग अलग जगह व्हीकल का यूज़ करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं फॉर गोइंग टू फार अवे प्लेसेस। तो दीज कैन बी रेलवे स्टेशन, ट्रेन और एयरपोर्ट। इफ यू वांट टू गो थ्रू प्लेन्स, यू विल गेट रिजर्वेशन इन द थ्रू द एयरपोर्ट। आप एयरपोर्ट से रिजर्वेशन कराएंगे, वहाँ से आप बोर्ड करेंगे, और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन का तो रिजर्वेशन आप स्टेशन से करेंगे, यानी रेलवे स्टेशन से करेंगे, और फिर आप ट्रेन से जाएंगे। तो इन सभी के लिए we don't have to go to the railway station or airport. We can place our reservation, we can make our reservation from the home itself। हम घर बैठे अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं, कैंसिलेशन करा सकते हैं, इवन वी कैन गो फॉर इंक्वायरी ऑल्सो। तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि वेदर द ट्रेन इज इन टाइम और डिले है, तो उस हिसाब से हम स्टेशन पे जाएंगे, अदरवाइज वी हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स वेटिंग फॉर द ट्रेन। तो ये सारी चीज़ें हम घर बैठे कर सकते हैं, ना तो हमको 4 बार आने जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और हम पहले से पता कर लेते हैं तो हमें परेशान भी नहीं होना पड़ता है। उसके बाद समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि हमने रिजर्वेशन तो करा लिया लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई टूर कैंसिल हो गया, तो उस केस में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद के लिए भी हमें लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि हमें लंबी लंबी लाइनों में
घंटों खड़ा होना पड़ता था, फिर हमारी चांस आती थी। और इससे क्या होता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था और हमें बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था। और गर्मियों में जब हम गर्मियों में ज़्यादातर लोग वेकेशन पे जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, अपने नेटिव जाते हैं, तो उस टाइम तो बहुत भीड़ रहा करती थी। अब क्या हम घर बैठे रोज़ चेक कर सकते हैं कि वेदर देयर इज़ अ सीट और नॉट, या फिर कब सीट खाली हो गई, और उसके बाद हम एकदम से इमरजेंसी में हम या तत्काल में या फिर हम तुरंत रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो द थिंग्स आर बिकम वेरी ईजी, वी आर एबल टू डू आवर वर्क विथ ईज। तो ये सारी चीज़ों कंप्यूटर के होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। हम जो चीज़ हम घंटों में करते थे उसको हम कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में कर सकते हैं। घर से बाहर निकलना रिस्क है, उसके बाद फिर पोल्यूशन है, फिर उसके बाद धूप है, गर्मी है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा वेस्ट होगा। अब हम घर बैठे ये सारे काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच रही हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर एक बार और हमारे लिए बहुत यूजफुल हो गया है। तो चिल्ड्रन, वंस अगेन वी मेक, चलो लिख करके हम देखते हैं, वी यूज़ कंप्यूटर्स, वी यूज़ या लिखते हैं computers are used at the above places for, मैंने at सिर्फ लिखा है, used for, used for first one children, first point is reserving tickets, RESERVING, reserving tickets, TICKETS, tickets. Now secondly children, second वाला है checking, CHECKING, checking tickets, checking the availability, availability of seats or tickets, availability of seats as well as tickets, availability, availability of seats and tickets. Then lastly, keeping, KEEPING, keeping record, RECORD, record of the passengers. So children, as you know, who are passengers children? The one who are traveling through these transportation. So these means aeroplane, plane or your train. तो वो लोग जो इनसे सफ़र करते हैं, जो इन पे जर्नी करेंगे, दे आर पैसेंजर्स। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर रिजर्विंग टिकट्स, टिकट रिजर्वेशन के लिए, और यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं लिखा है, बट यू शुड नो फॉर कैंसिलेशन ऑल्सो वी यूज। देन चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और टिकट्स। अब हम स्टेशन पे जा करके, हम स्टेशन पे जाते हैं और टिकट रिजर्वेशन कराते थे पहले, तो हमें बहुत बुरा लगता था, घंटों भर लाइन में खड़े रहो, टिकट खत्म हो गया, टिकट विंडो पे पहुँचते पहुँचते टिकट खत्म हो गया, तो कितना बुरा लगता था, हमारा टाइम वेस्ट होता था और हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, और फिर वापस दूसरे दिन आकर के हमको वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, हम चेक कर सकते हैं कि टिकट है कि नहीं, और उसके बाद आराम से हम रिजर्वेशन करा सकते हैं। हम रोज चेक कर सकते हैं, आज नहीं है कल चेक करेंगे। तो यहाँ पे इससे हम सीट्स की अवेलेबिलिटी और टिकट्स की अवेलेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं घर बैठे, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर। और कीपिंग रिकॉर्ड फॉर द पैसेंजर, और पैसेंजर्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पे, यानी कि ट्रेन के थ्रू या प्लेन के थ्रू, वो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन, जैसे कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रखा जाता है, स्कूल में स्टूडेंट्स का रखा जाता है, ऑफिस में ऑफिस एम्प्लॉयज़ का रखा जाता है। तो एवरीवेयर वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स और द पैसेंजर्स हु आर ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रेन्स और एरोप्लेन्स। तो इसके लिए भी वी नीड कंप्यूटर। सो चिल्ड्रन, दीज आर द प्लेसेस वेयर वी नीड and use computer. So as you saw children, at every place we have different work to do with computer. हमने यहाँ पे जितनी भी जगहों के बारे में पढ़ा, सब में हम अलग अलग काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करके। तो इससे with this we know that कि computers are used for multiple tasks, या it is used for doing different types of tasks. अलग अलग काम करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, and it is doing lot of work for us, and that is why our work
और आर लाइफ हैज़ बिकम वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। हमारी लाइफ कंप्यूटर के यूज़ से बहुत आसान और कंफर्टेबल हो गई है। अब हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हमारा काम हो जाता है। तो चिल्ड्रन, लेट अस रिवाइज वंस अगेन व्हाट वी स्टडी टुडे। तो आज हमने पढ़ा कि इन द बैंक वी यूज़ कंप्यूटर्स इन द बैंक फॉर डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी, फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स एंड विड्रॉ कैश फ्रॉम द ATM। तो कंप्यूटर जो बैंक है वहाँ पे भी बहुत सारे काम होते हैं। पैसों का लेन देन होता है, मनी ट्रांजैक्शन होता है। लेन देन का मतलब मनी ट्रांजैक्शन होता है, पैसे हम जमा करते हैं, निकालते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं। तो इन सभी के लिए वी नीड कंप्यूटर एंड वी यूज़ कंप्यूटर। और बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर we are able to save our time, we are able to do our work easily, and also we are able to do few things, most of the things फ्रॉम होम itself। हम घर से कर पा रहे हैं, या फिर हम ATM जाके फटाफट पैसे निकाल लेते हैं, हमें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो आजकल तो मनी ट्रांजैक्शन हम ATM के थ्रू कर ले रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी कर ले रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा लाइफ बहुत आसान है। पहले हम किसी भी काम में के लिए जाते थे तो घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था। गर्मी हो, रेनी सीजन हो, बरसात हो या फिर विंटर्स हो, हम में लंबी लाइन में खड़े होना सबसे ख़राब लगता था। इसलिए हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको जल्दी करना नहीं चाहते थे, बहुत मुश्किल से हम करना चाहते थे। बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट करना हो, या फिर हमारे स्कूल के तो फीस वगैरह भी हम बैंक में जाके जमा करते हैं। तो जब हम बैंक में जाके करते तो वहाँ पे लंबी लाइन लगती थी, उसके लिए हमें समय निकालना पड़ता था। अगर हम वर्किंग है तो ऑफिस से टाइम निकालना पड़ता था। बट नाउअडेज हम आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, बहुत सारे काम के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक वाला भी हम फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी को ट्रांसफ़र करना है मनी, तो अब हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही मनी को अब दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम with the use of computer our life has become very comfortable, very fast and very easy. So children, in banks we deposit money, we withdraw money, maintain accounts, and also we can withdraw money using the ATM machine. उसके बाद at airport and railway station we need to whenever we go to from the airport and railway station we make our reservations, and we also sometimes cancel our reservation. For cancellation, for reservation, or for checking the availability of seat also we need computers, and we use computers. With the use of computer, here also the work has become very easy and simple. So children, till now in this chapter we have studied at different places where we use computers. In schools, children, the computers are used for teaching the students, keeping record of the students and teachers, preparing test papers and examination results, keeping a record of fees collected from the students. These are the works which we do in the schools. Then at home, children, the computer is used for doing homework, playing games, listening to the music, watching movies, surfing the internet. Then at office, children, the computer is used for typing, printing the document, typing and printing the documents, sending official records, storing official records, or sending mails or receiving the mails. At shop, children, the computer is used for making and printing bills. Then keeping a record of the stock. तो जो भी सामान होता है और यहाँ पे शॉप्स में उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी वी नीड अ कंप्यूटर. इन द हॉस्पिटल, चिल्ड्रन, द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग द डॉक्टर्स टू डायग्नोज द डिजीजेस, keeping a record of patients who are visiting to the doctor or to the hospital, and preparing the medical reports. In the bank, children, this computer is used for depositing and withdrawing money, maintaining the accounts, withdrawing cash through ATM. The computer is used for reserving tickets, checking the availability of seats and tickets, and keeping the record of the passengers. So these are the things which we do using the computer at different places. So children, with this I hope you all have understood the chapter. Go through the chapter, read the chapter, and underline the words in which you have difficulty. So we will be discussing those words in the online classes. So children, in the next video we will be
doing book exercise, we will be doing self-evaluation. Before that, please go to the chapter, yani read the chapter. It is very important to read the chapter. Until or unless you read the chapter, you won't be able to understand most of the things. मेरे बोलने से या मेरे समझाने से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको समझने के लिए हमको चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें चैप्टर का पढ़ना ज़रूरी होता है. तो इट इज़ अ गुड हैबिट, चिल्ड्रन डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग द चैप्टर्स. कोई भी सब्जेक्ट हो, for getting the knowledge or for getting the proper knowledge in proper way, you need to read the chapter. So read the chapter. We will meet once again in our next video. Till then, children, thank you.